عبداللہ کا دستور یہ تھا کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے دسترخوان پہ تو کسی آدمی کو بلاتے، پڑوسی کا ایک آدمی کو بلاتے، محلے سے ایک آدمی کو بلاتے، راستے میں کوئی آدمی مل جاتا اس کو دسترخوان میں بلاتے ہیں۔ اس چرواہے سے کہا چرواہا ہماری اس دسترخوان میں شامل ہو جاؤ۔ چرواہا نے جواب دیا انی صائم، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، رمضان کا مہینہ نہیں تھا، نفلی روزے سے ہوں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، اے چرواہا تم پہاڑ میں بکریاں چرا رہے ہو، لو چل رہی ہے، اتنی تیز لو چل رہی ہے، سورج کی تپش اتنی شدید ہے، اتنی گرمی ہے، اور ان گرمیوں کو تم برداشت کر کے جھیل کر کے تم روزہ رکھ رہے ہو، پر سے بکریاں چرا رہے ہو، کیا تم واقعی روزے سے ہو؟ امتحان لینا چاہا کہ دیکھے یہ آدمی روزے سے ہی یا نہیں، یہ آدمی تقوی گزار ہے یا نہیں، یہ آدمی متقی ہے یا نہیں۔ اس آدمی سے کہا چرواہے کام کرو، یہ جو ڈھیور میں بکریاں ہیں، یہ بکریوں کی جماعت جو تم لے کر جا رہے ہو، ہاک رہے ہو، ان بکریوں میں سے ایک بکری بیچ دو، ایک بکری ہمیں دے دو۔ کہا نہیں یہ بکری میری نہیں ہے، میرے مالک کی ہے۔ کہا تمہارا مالک کچھ نہیں کہے گا، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکریاں ریور میں کوئی بھیڑیا آیا اور بکری کھا گئی، اور ایک دن دو دن ایسا تو ہوتا ہی رہتا ہے کہ ایک دو بکریاں کبھی ادھر کبھی ادھر تو ہو ہی جاتی ہے، اتنی ساری بکریاں ہیں، تمہاری مالک کچھ نہیں کہیں گے۔ ایگزام لینے کے لیے، امتحان لینے کے لیے اس چرواہے کو کہا کہ ایک بکری ہمیں دے دو۔ کہا ہے فلا میں اپنے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں اپنے مالک سے کہہ دوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئی، میرا مالک میری بات مان جائے گا، لیکن پھر یہ بتاؤ کہ آئین اللہ، آئین اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ دنیا میں اپنے مالک کو دھوکہ تو دے سکتا ہوں، لیکن کل قیامت کے دن اپنے مالک کو کیسے دھوکہ دوں گا؟ اپنے مالک کے مالک کو کیسے دھوکہ دوں گا؟ دنیا میں اپنے مالک کو کہہ دوں گا کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئی، وہ میری بات مان جائیں گے، لیکن اللہ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ عبداللہ ابن عمر نے دیکھا اتنے متقی آدمی، اتنے پرہیزگار آدمی ہے، اتنی شدید گرمی ہے، لو چل رہی ہے، اس کے باوجود روزہ رکھ رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بکری مجھے دے دو، کچھ گوشت میں دے دیں گے، تم اپنے مالک سے کہہ دینا کہ بکری بھیڑیا کھا گئی، لیکن باوجود کیا کہہ رہا ہے کہ میں دنیا کے مالک کو دھوکہ دے سکتا ہوں اور میں بچ جاؤں گا، لیکن اس مالک کے مالک کو کیا جواب دوں گا جو عرش عظیم پر مستوی ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کام کر رہے ہیں نا، اس دنیا میں مالک کو دھوکہ اس دنیا میں دے سکتے ہیں، اور آپ کی بات مالک مان بھی جائیں گے، لیکن اس مالک کو کیا جواب دیں گے میرے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان تھا اس کے اندر اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہا تھا، لیکن ہم اور آپ، کوئی ایمان والا ہے تو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے، کوئی اللہ سے ڈرتا ہے تو ان کے اندر ایمان نہیں ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو کمپلیٹلی کرنا ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر انسان کو یہ غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ انسان بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے انسان کی دو چیزیں بڑھتی جا رہی ہے، حب المال و طول العمر،
इंसान जब बड़ा होता है तो सोचता है कि माल कैसे आए, माल की मोहब्बत बढ़ती जाती है, माल कैसे आए, माल कहाँ से जमा करें, और इंसान ये सोचता है कि हमारी उम्र और कैसे लंबी हो। 60 साल जिंदगी गुजर गया, वो इंसान और सोचता है कि और 10 साल जिंदगी मिल जाए, 70 साल क्रॉस कर गया, फिर अल्लाह से दुआ करता है आए अल्लाह और 80 साल मिल जाए। इसी तरह करते करते वो जिंदगी में दो चीजों की ख्वाहिश करती जाती है और दो चीज उनके साथ बढ़ती जाती है। वो सोचता है कि माल कैसे आए, वो सोचता है कि उम्र कैसी लंबी हो। मेरे प्यारे साथियों, इंसान जब बड़ा होता है तो शादी से पहले पहले ये सोचता है कि शादी होने से पहले कुछ इंतजाम कर लें। फिर शादी हुई, कुछ और बड़ा हुआ, फिर ये सोचता है कि अब शादी हो गई, कुछ दिन बाद बच्चा होने वाला है, अब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ जमा कर लो, अपने बच्चे के लिए जमा करता है। लेकिन ऐ इंसानों, कभी हमने और आपने गौर किया है कि हमने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है? हमारा इस दुनिया में खात्मा हो जाएगा, हम और आप इस दुनिया को छोड़कर अलविदा कह जाएंगे। उस दिन जब हमसे पूछा जाएगा कि दुनिया में कितनी इबादत अल्लाह को राजी करने के लिए की है, अल्लाह को खुश करने के लिए कितना नेक अमल किया है, हम और आप क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को आने वाले दिन के लिए तैयारी करनी चाहिए। हम और आप इस दुनिया की तैयारी में तो मशगूल रहते हैं, अपने वालिदैन अपने बच्चों के लिए तैयारी में मशगूल रहते हैं। मेरा बेटा कैसे मालदार बने, मेरा बेटा के पास कैसे माल हो, मेरी औलाद के पास कैसे माल हो, मेरा बेटा आराम के साथ कैसे रहे, उनकी जिंदगी के लिए हम बंदोबस्त कर रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। और हलाल और हराम के दरमियान हमारी तमीज नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक का एक गुलाम था, दस्तूर था कि जब गुलाम कमा कर लाता था उनसे पूछ लिया करते थे गुलाम ये बताओ ये माल तुमने कहाँ से कमा कर लाया? हमने कभी अपनी औलाद से पूछा है? हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए, हमें तो गिनना चाहिए कि आज इतना नोट मिला कल और ज्यादा मिल जाए। इंसान की लालच इतनी बढ़ जाती है कि उनका बेटा चोर बन जाता है, डाकू बन जाता है, लुटेरा बन जाता है, लेकिन उसको पैसे से मतलब होता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम से पूछ लिया करते थे गुलाम बताओ ये कहाँ से कमा कर लाया? गुलाम डेली जवाब देते थे कि आज मैंने फला जगह से कमा कर लाया, मेहनत और मजदूरी करके कमा कर लाया। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गुलाम को पूछा नहीं और गुलाम ने गलत तरीके से गलत रास्ते से पैसा कमा कर अबू बकर सिद्दीक को लाया। उन पैसों से खजूर खरीद कर लाया और अपने आका को, अपने मालिक को दे दिया, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस खजूर को खा भी लिया। सुनिए बहुत प्यारा वाक़या है। उसके बाद गुलाम ने कहा है मेरे मालिक, आए अबू बकर सिद्दीक आप डेली पूछते थे कि कहां से कमा कर लाया, लेकिन आज क्यों नहीं पूछा? माहाज़ा तदरी, क्या आप जानते कि ये माल, ये पैसा, ये खजूर जो हमने आपको ला कर दिया ये हलाल है या हराम? कहा मैं क्या जानूं, मैं डेली पूछा करता था, सिर्फ आज ही नहीं पूछा हो। उनके गुलाम ने कहा मैंने कहानत गढ़ी थी, किसी जमाने में कहानत गढ़ी थी, आजकल भी लोग ऐसे मिल जाएंगे कहानत गढ़ने वाले, हाथ देकर आपको पता बता देंगे कि आपकी शादी कहां होगी। इंसान कर रख देकर, नस देकर वो बता देंगे कि आपकी शादी कहां होगी। इन पेशावर और धंधावर लोगों का क्या कहना जो अपने पेट के लिए अड्डा खोल कर बैठे हुए हैं, ये कहानत गढ़ने वाले। वो खुद कहानत गढ़ते हैं, लेकिन उनके पास जो जाते हैं उन पर मुझे बड़ा अफसोस है कि वो तो अपना रोजी रोटी के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन आप जो उनके पास जाते हैं आपकी सबसे बड़ी गलती है। आप अगर ना जाए तो उनका दरवाजा बंद हो जाएगा, उनकी चौखट बंद हो जाएंगे, लेकिन आप जाकर ये पूछते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखी हुई है।
ایک آدمی چلا کہ میری شادی کہاں ہوگی، بتا دیجئے کس علاقے میں ہوگی، بڑا علاقہ ہوگا تو خوش نصیب ہوں گے، پیسہ ملے گا، اتنا دولت ملے گی۔ تو اس آدمی نے کہا بٹا لگاؤ، 500 روپیہ بٹا لگایا اور ایسے پتھر اتر باندھ کے ایسے گھما رہا ہے، جیسے فرنگی گھومتی ہے نا ویسے گھما رہا ہے۔ اب جو علاقہ اچھا ہے، جو بستی اچھی ہے، وہاں پر وہ نشانہ نہیں مارا، وہ دوسری بستی میں پھینک دیا۔ تو انسان سوچنے لگا یار میری قسمت خراب ہے، ایسا جو سوچ رہے تھے ویسا نہیں ہوا۔ کہہ رہا ہے ہمارے پاس سب راستہ ہے، آپ کتنے کے بٹا لگائے تھے؟ کہا 500۔ کہا 1000 لگا کے دیکھ، ایک بار اور دیکھ لے۔ جب 1000 لگایا تو پھر ایسے گھمایا اس بستی کی طرف جہاں وہ چاہتا تھا کہ اس علاقے میں شادی ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، غلطی ہماری اور آپ کی ہے کہ ہم اس کے پاس جاتے ہیں، کہانت گڑنے والوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنی قسمت معلوم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت لکھ دیا تھا، انسان کہ پیدائش سے لے کر موت تک ساری چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ ان چیزوں کو بدلنے والی کوئی چیز اگر ہے تو دعا ہے، دعا کے علاوہ کوئی چیز آپ کی قسمت کو بدل نہیں سکتی ہے۔ ان کے غلام نے کہا ابو بکر میں نے کہانت گڑی تھی، راستے میں میاں بیوی کا سفر ہوا، میاں بیوی چل رہا تھا، ان کی بیوی کے پیٹ میں بچہ ہونے والا، پیٹ میں بچہ تھا، وہ حمل تھا۔ مجھ سے پوچھا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی، میں نے بتا دیا، ان کا ہاتھ پکڑا اور بتا دیا کہ بیٹا ہوگا۔ میں نے جھوٹی بات بتائی، کچھ دن کے بعد ان کا بیٹا ہو گیا اور وہ میرے پاس آیا، میرے پاس آنے کے بعد بتایا کہ فلاں آپ نے کہانت گڑی تھی اور کہا تھا میرا بیٹا ہوگا، اور اللہ نے ایشور نے مجھے بیٹا ہی دیا۔ آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، آپ یہ لے لیجیے، اتنا پیسہ لے لیجیے۔ وہ پیسہ میں نے لے لیا اور اسی پیسے سے کھجور خریدا اور آپ کو کھلا دیا۔ میں نے کہانت گڑی تھی، میں جانتا ہوں کہ یہ پیسہ حرام کا ہے، لیکن میں نے آپ کو کھلایا اس لیے کہ آپ ڈیلی پوچھا کرتے تھے، آج پوچھ رہے یا نہیں۔ جیسے یہ کہنا تھا میرے بھائیوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا اور پانی منگوانے کے بعد کلی کیا اور اتنا حلق میں انگلی ڈالا، ڈالتے ڈالتے جتنا کھایا تھا اتنا نگل دیا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ایسا اس لیے کیا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر نہیں ڈالا۔ ہم اور آپ حرام کمائی میں اپنی بلڈنگ بنا رہے ہیں، حرام کمائی میں اپنی دولت بڑھا رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو ناجائز طریقے ہیں ان طریقوں کو اپنا کر ہم اور آپ مال جما رہے ہیں، ان طریقوں کو ہم اور آپ اختیار کر کے مال جما رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک پیارا سا جملہ کہا، جو انسان گناہ کرتا ہے، حرام کمائی کرتا ہے، اس کے دل میں ایک نقطہ پڑ جاتا ہے، سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ وہ انسان اگر توبہ کر لیتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور توبہ نہیں کرتا ہے تو ان کی آرزویں اور حرام کی طرف بڑھتی جاتی ہے، ان کی تمنائیں حرام کی طرف بڑھتی جاتی ہیں، اور وہ دھیرے دھیرے اتنا پھیلتا ہے کہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے، اور وہ انسان ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں گناہ ہی گناہ کروں، ہمیشہ سوچتا ہے کہ میں گناہ ہی گناہ کروں۔ تو ایسا کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کہ کچھ تیاری آخرت کی ہو جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دنیا میں سرٹیفکیٹ ملی ہے کہ نہیں؟ جنت کی بشارت ملی ہے کہ نہیں؟ ایسے صحابی حرام کا ایک لقمہ اپنے اندر جانا گوارا نہیں کیا، اس کو نکال دیا میرے بھائیوں۔ لیکن ہم اور آپ اپنی اولاد کے لیے اتنی کاوش کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو چوری پر آمادہ کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو ڈاکو بننے پر آمادہ کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا یاد رکھیے گا، یہی اولاد ہے جن کے بارے میں ہم اور آپ دنیا میں یہ سوچتے کہ تمام دولت، تمام جائیداد ان کے پاس آ جائے، لیکن جب قیامت کے دن آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا اور آپ سے آخری خواہش پوچھی جائے گی، تو کہیں گے آپ اے اللہ
दुनिया में अपनी बीवी के लिए हराम कमाई किया था, दुनिया में अपनी औलाद के लिए हराम कमाई किया था। आय अल्लाह मुझे जन्नत दे दे, जहन्नम में जाने से मुझे रोक दे, जहन्नम में मुझे ना डाल, मुझे जहन्नम में ना डाल, जन्नत मेरा ठिकाना कर दे और मेरे बदले में मेरी बीवी को जहन्नम में डाल दे। जिस बीवी से इतना प्यार इतनी मोहब्बत करते हैं हम और आप, जिस औलाद के लिए दिन और रात हम एक कर देते हैं, उन्हीं औलाद के बारे में क़यामत के दिन हम कहेंगे अल्लाह हमको जन्नत दे दे और मेरी इन औलाद को जहन्नम में डाल दे। तो हमारे और आपके अंदर नेक अमल होना चाहिए, जन्नत की तैयारी होनी चाहिए। मेरी बहनों के अंदर मैंने देखा, शौहर अगर इंतकाल कर जाता है तो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर इतना रोती और कहती अल्लाह मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया, मेरी रोजी रोटी का बंदोबस्त कौन करेगा। बेटा अगर इंतकाल कर जाता है तो ये सोचता है कि मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया, मेरा सहारा कौन बनेगा। जिनके छोटे छोटे बच्चे इंतकाल कर जाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं क़यामत के दिन वो बच्चा इस हाल में आएगा कि अपने वालिदैन के कपड़े से चिमट जाएंगे और अल्लाह से कहेंगे आय अल्लाह दुनिया में तुमने मुझसे इसे छीना था, आज आखिरत में इससे ना छीन, और आखिरत में जन्नत में हम दोनों को मेरे माँ बाप के साथ जन्नत में रहने की मोहलत दे दे, जन्नत में रहने का मौका इनायत फरमा दे। मेरे प्यारे साथियों, जब वो छोटे छोटे बच्चे अपनी औलाद अपने वालिदैन के कपड़े से चिमट जाएंगे, अल्लाह कहेगा जाओ फरिश्तों इसका ठिकाना जन्नत कर दो, इसका ठिकाना जन्नत कर दो। लेकिन हमें और आपको ये चाहिए कि अगर छोटा छोटा बच्चा इंतकाल कर जाता है तो सब्र करना चाहिए। अगर गरीबान पीट लिए, ऐसा 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 सीना नोच लिए, मातम कर लिए, रो लिए, गिड़गिड़ा लिए, नाशुक्री कर लिए कि अल्लाह, कुछ लोग ये कहते कि अल्लाह को किसी को और दिखाई नहीं दिया, हमारी औलाद पर नजर पड़ी थी, हमारी औलाद को ही ले ली, हमारे बच्चे के ऊपर ही अल्लाह की नजर पड़ी थी। आइए मैं एक वाक़या आपको बता रहा हूं अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। उनकी बीबी उम्मे सुलैम का वो वाक़या दिलों को झंझोड़ देगा मेरे प्यारे साथियों। उनके घर में एक लड़का था, एक बच्चा था। अबू तलहा उनसे बहुत प्यार करता था, उनसे बहुत मोहब्बत करता था। जैसे बाजार से आया, जिहाद के मैदान से आया, अपने बेटे के बारे में पूछा, आए मेरी बीवी उम्मे सुलैम मेरा बेटा कैसा है। उनका हाल पूछता, उनकी बीवी बताते तुम्हारा बेटा सही है, अल्लाह ने इम्तिहान लेना चाहा, आजमाइश करना चाहा, और कुछ ही दिन के बाद उनका बेटा बीमारी में मुब्तला हो गया, बीमार पड़ गया। इतनी मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत करता था, नजरों से दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन मजबूरी इंसान को खींचकर दूसरी जगह ले जाया करती है। जैसे हम और आप बच्चों को छोड़कर दिल्ली जाते हैं, पंजाब जाते हैं, केरल जाते हैं, हम अपने बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान करके जाते हैं। हम ये नहीं चाहते कि अपने बच्चों की मोहब्बत को कुर्बान करें, लेकिन हमारी मजबूरी हमें वहां तक खींच कर ले जाती है। अबू तलहा मामूल के मुताबिक एक दिन बाहर चले गए, जिहाद के मैदान में चले गए, दूसरी जगह चले गए। वो बाहर ही में थे, इतने में उनका बच्चा इंतकाल कर गया, उनका बच्चा मर गया। शाम के वक्त घर आया, बीवी से पूछा बीवी मेरा बच्चा कैसा है। बीवी ने कहा पहले की बार इस बार वो बच्चा आराम से सुकून से। बीवी ने नहीं बताया कि शौहर आपका बच्चा मर गया है। क्यों नहीं बताया? इसलिए नहीं बताया कि शाम का वक्त है, थका मंदा आया है, अगर अभी बता दिया जाए तो ये रोने धोने में लग जाएंगे, इसलिए बेहतर है कि इसको अभी ना बताया जाए। पहले की बानिस्बत आपका बच्चा आराम से सुकून से है। उसके बाद उम्मे सुलैम ने खाना लगाया, उनकी बीवी ने खाना लगाया, दस्तरखान लगाया, दोनों ने बैठकर आराम से खाना खाया। उनकी बीवी के ऊपर पहाड़, मुसीबत का पहाड़ टूटा था, गम का पहाड़ टूटा हुआ था, लेकिन अपने शौहर को तसल्ली किस अंदाज से दे हैं सुनिए। दोनों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद अपने शौहर से कहा ओ मेरे शौहर इस जगह पे बैठ कर आप आराम कीजिए।
वो बंद कमरे में चली गई और सज सवार करके आई, सज सवार करने लगी। आप कहेंगे घर में मैयत है, मुर्दा है, उनका बेटा इंतकाल कर गया और सज सवार करती है। पूरा वाकया सुनिए तब पता चलेगा कि क्या मकसद था। उनका बेटा मर चुका था, अपने शौहर को नहीं बताया कि आपका बेटा मर गया है, बल्कि उनकी लाश को घर के किसी कोने में रख दिया और सज सवार करके अपने शौहर को मशगूल कर दिया बातों में। बातचीत करते करते दोनों आराम के साथ सो गए, आराम से सो गए। सुबह हुई, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद अपने शौहर को ये बता रही है, ओ मेरे शौहर, दुनिया में गरबनंगा वाला अगर किसी इलाके वाले को कोई चीज अमानत सौंपे तो क्या उनकी जिम्मेदारी ये नहीं कि वो अमानत को वापस कर दे? कहा कोई चीज अगर किसी के पास अमानत रखी जाए वो उनकी अमानत को वापस कर दे। अगर इसमें अमानत वापस नहीं करता है तो ये हील होगा, ये हुज्जत होगा, झगड़ा होगा। ये चीज सही नहीं है। कोई किसी की हवाले कोई चीज करता है तो उनको वापस करना चाहिए। ओ मेरे शौहर ये बात मानते हैं? कहा मैं मानता हूं। तो मेरे शौहर सुनिए, अल्लाह ने आपको अमानत दी थी, अल्लाह ने आपको बेटा अता किया था, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया है। कल रात शाम से पहले दिन में आपका बेटा इंतकाल कर गया है। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले लिया है। ओ मेरी बीवी, तुमने क्यों नहीं बताया? जब दिन ही में इंतकाल कर गया था, मैं शाम को घर आया, पूरी रात गुजर गई, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं? कहा मेरे शौहर इसलिए मैंने नहीं बताई क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं अगर बता देता तो आप रोने धोने में लगते, बाहर से थका मंदा है, आप खाना भी नहीं खाते और आप उसी चीज में मातम करते। इसलिए मैं मुनासिब समझा कि आपको न बताया जाए, सुबह इस अंदाज से बताया जाए ताकि आपको सब्र हो जाए। औलाद पर सब्र, सब्र तहम्मुल से जब काम लिया, ये मामला अल्लाह के रसूल के पास पहुंचाया गया। अल्लाह के रसूल ने कहा कि क्या मामला है? कहा सब्र तहम्मुल से काम लिया गया। उनका बेटा इंतकाल हो गया लेकिन रोने धोने की आवाज़ नहीं, सब्र तहम्मुल से काम लिया। अल्लाह के रसूल ने कहा क्या अबू तलहा, क्या रात में आप अपनी बीवी से मिले थे? कहा मिले थे, हम बिस्तर हुई थी। कहा मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, बरकत की दुआ कर रहा हूँ, फिर आपका दूसरा लड़का पैदा होगा और हाफिज कुरान होगा, इल्म वाला होगा। और मुअर्रिख लिखते हैं, तारीख लिखते हैं, तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि उनके बेटे से फिर 5 ऐसा लड़का पैदा हुआ जो सब के सब हाफिज कुरान थे। तो जो शख्स अपनी औलाद पर सब्र करें, उनकी मौत पर, जिनके छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया से इंतकाल कर गए हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उनका ठिकाना जब जहन्नमी हो जाएगा, उनको जहन्नम की तरफ फरिश्ते लेकर जाएंगे। उनका छोटा छोटा बच्चा जो जन्नत के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, पीछे से दौड़ता हुआ आएगा, उनका दामन पकड़ेगा और कहेगा या अल्लाह, मुझे अपने माँ बाप के साथ दुनिया में शौक था कि फला बाजार जाऊं, लेकिन दुनिया में आपने मुझसे छीना था, एक साथ रह नहीं पाया, या अल्लाह उस दुनिया में छीना था, आज ना छीन। जब छोटे बच्चे अल्लाह से शिफात करेंगे, अल्लाह से शफात करेंगे, सिफारिश करेंगे, अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाएंगे और उनके वालिदैन को जन्नत देंगे। लेकिन ज़रूरी है कि हम अपनी औलाद पर सब्र करें, हम अपनी औलाद की मौत पर सब्र करें। लेकिन सब्र नहीं करते हैं तो फिर वो चीज़ काबिल कबूल नहीं होंगे। तो ऐसा क्यों किया? इसलिए कि वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजलिस में बैठे हुए अल्लाह के रसूल ने कहा, लोगों, तुम में से आज किसने किसी इंसान के जनाजे में शरीक हुआ है, किसी को कंधा दिया है?
अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे गांव में, मेरे बस्ती में एक फला शख्स का इंतकाल हुआ, मैं उनकी जनाजे के साथ गया, मैंने उनके जनाजे को कंधा दिया, मैंने उनको मिट्टी भी दिया। अल्लाह के रसूल फरमाते बैठ जाओ। फिर आपने फरमाया, आज तुम में से कौन है जिसने किसी मरीज की आदत की हो, जिसने किसी मरीज की देखभाल की हो। फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े होते और कहते अल्लाह के रसूल, मैं आज किसी बस्ती में, मेरे ही बस्ती में एक शख्स बीमार हुआ था, मैं उनकी इयादत करने के लिए गया था, मैं उनकी देखभाल करने के लिए गया था, मैं उनकी देखरेख करने के लिए गया था। अल्लाह के रसूल ने कहा बैठ जाओ। फिर आपने कहा, ऐ लोगों, तुम में से कौन है जो आज नफली रोजा रखा है? तुम में से कौन है जो आज नफली रोजा रखा? फिर अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं और कहते हैं अल्लाह के रसूल, आज मैं नफली रोजे से हूं। अबू बकर सिद्दीक आप बैठ जाओ। फिर आपने चौथी बार फरमाया कि तुम में से कौन है जिसने आज किसी भूखे को खाना खिलाया है? अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए और कहने लगे अल्लाह के रसूल, मैंने आज किसी भूखे को खाना खिलाया है। एक शख्स भूखा था, मेरे दरवाजे में आया, मैंने उसको खाना दिया है। अल्लाह के रसूल उसके बाद खुशखबरी सुनाते हैं, आए अबू बकर सिद्दीक और आए मैं इस मजलिस में बैठने वाले लोगों, जिस इंसान के अंदर ये चार खूबियां हो, जिस इंसान के अंदर ये चार सिफतें हो, किसी मरीज की इयादत की हो, किसी जनाजे में शरीक हुआ हो, नफली रोजा रखा हो, नफली रोजा रखा हो और किसी को खाना खिलाया हो, भूखों को खाना खिलाया हो, मरीज की इयादत की हो, जनाजे में शरीक हुआ हो, ये चार खूबी किसी इंसान के अंदर अगर पाई जाए तो मैं उसको जन्नत जाने की बशारत सुना रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, जिन सहाबी को जन्नत जाने की बशारत मिल गई हो, जिस सहाबी को जन्नत जाने की सर्टिफिकेट दे दी गई हो, वो सहाबी नफली रोजा का भी एहतमाम रखता है, किसी भूखे को भी खाना खिलाता है, किसी मरीज की इयादत भी करता है। मेरे प्यारे साथियों, एक हम है जो छोटी सी छोटी नेकियों पर इख्तिफा कर लेते हैं और कहते हैं हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया, हमने फला जगह पे बहुत बड़ा रुपया दान कर दिया, हमने बहुत बड़ी लोगों की मदद कर दी, हमने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे दिया, अल्लाह हमारी इन कामों की बदौलत हमें जन्नत दे देंगे। अल्लाह कहता है नहीं नहीं, हम अपने रहमो करम से तुम्हें जन्नत देंगे, तुम्हारी नमाज देख कर नहीं, तुम्हारे रोजे देख कर नहीं, तुम्हारी इबादतें देख कर नहीं, हम अपने रहमो करम से तुम्हें जन्नत देंगे। लेकिन तुम्हें ये फक्र नहीं करना होगा कि हम इन चीजों को किए, इसलिए अल्लाह इन बदौलत हमें जन्नत दे रहा है। अल्लाह अपने रहमो करम से देता है। हम और आप मेहमान को खाना खिलाने से डरते हैं। उम्मे सुलैम का वो वाक़या याद कीजिए। अल्लाह के रसूल के मजलिस में एक शख्स आया, एक भूखा शख्स आया, एक मेहमान आया। अल्लाह के रसूल ने पता किया कि घर में खाना है या नहीं। अज़वाजे मुतहर्रात ने जवाब दे दिया, उम्महातुल मुमिनीन ने जवाब दे दिया कि घर में कुछ खाना नहीं। आपने सहाबा की तरफ देखा और कहा, मेरे सहाबा कौन है जो मेरे इस मेहमान को आज खाना खिलाए? अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं आपके मेहमान की मेहमान नवाजी करूंगा, मेजबान बनूंगा। वो अपने घर में ले जाते हैं और अपनी बीबी से पूछते हैं, ओ मेरी बीबी, मेहमान लाया हो, जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहमान है। कितने खुश नसीब हम है कि जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मेहमान आज हमारे घर में आया है। क्या घर में खाने को कुछ है? का थोड़ा सा खाना है, अगर बच्चों को दिया जाए तो बच्चा इक्तिफा करेगा, मेहमान को नहीं मिलेगा, मेहमान को दिया जाए तो बच्चा भूखा रह जाएगा। चलो एक काम करते हैं, कोई तदबीर सोचा जाए, कोई तदबीर सोचा जाए, कोई चाल सोचा जाए। और मेरी बीबी, चिराग बुझा देना, चिराग दुरुस्त करते वक्त चिराग बुझा देना, हम अपने मेहमान के साथ बैठ जाएंगे, वही खाना मेहमान के सामने रखा होगा, मेहमान खाना खाएगा और हम भी अपने
हम भी अपने हाथ को उठाएंगे, लुकमा अपने मुंह तक ले जाएंगे और मेहमान को पता चलेगा कि मेरा मेजबान भी खाना खा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, चिराग को दुरुस्त करने की जगह चिराग को बुझा देता है, अंधेरी हो जाती है और वो शख्स अबू तलहा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस जगह पे बैठकर मेहमान के साथ बैठ जाते हैं और मेहमान को भूखा नहीं रहने देते, मेहमान को पेट भरकर खाना खिलाते हैं, खुद भूखा रह जाते हैं। कुरान की आयत नाजिल होती है सुबह सुबह, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, वही वो लोग हैं जो अपनों के बनिस्बत दूसरों को तरजीह दिया करते हैं। हम खुद भूखा रह जाएंगे लेकिन किसी मेहमान को भूखा नहीं रखेंगे। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल के दरबार में ये बात पहुंचाई गई। अल्लाह के रसूल ने कहा ही वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान की आयतें नाजिल हुआ करती है कि ये खुद को भूखा रखते हैं लेकिन दूसरों को तरजीह देते हैं। ऐसा किस लिए कर रहे हैं? वल्तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप अपना पेट अगर भर जाए तो दूसरा कहीं भी जाए। एक शख्स था, सफर कर रहा था, सफर करते करते जब शाम हो गया, सूरज ढल गया, एक घर मिला, उस घर के अंदर गए। जब उस घर के अंदर गए तो मियाँ बीवी उस घर में थे। पहले मुलाकात शौहर से हुई, मर्द से हुई। मर्द ने उसके लिए खाना का इंतजाम किया, नहीं पहले औरत से हुई। औरत ने खाना का इंतजाम किया, खाना खाने के लिए बैठा और उसका शौहर आ गया। उसने कहा किसको खाना खिलाया? कहा मेहमान आया है। कहा कहाँ का मेहमान? मेहमान हमारे कुछ नहीं, खाना खिलाया नहीं। फिर वो आदमी वहां से आगे बढ़ा, फिर एक और घर नजर आया। जब उस घर में गए तो वहां पर जो मलका थी, वहां पर जो खातून थी, लेडीज थी, बीबी थी, उसने खाना नहीं खिलाया, वह मर्द ने खिलाया। एक जगह पे औरत ने इनकार किया और एक जगह पे मर्द ने इनकार किया। पहली मर्तबा औरत ने खाना दिया, मर्द ने इनकार किया, और दूसरे घर में जब गए तो वहां पर किसने इनकार किया? औरत ने इनकार किया और मर्द ने खाना खिलाया। यह आदमी मन ही मन में सोच रहा है और हंस रहा है, या अल्लाह, ये कैसा माजरा हो गया, ये कैसा मामला हो गया। एक घर में गए तो बीबी ने खाना दिया, शौहर ने मना कर दिया। दूसरे घर में आए तो बीबी ने इनकार कर दिया, शौहर ने खाना दिया, मन मन में हंस रहा है। वो आदमी देखकर कहता है फला क्यों हंस रहे हो? कहा मुझे कुछ बात याद आ रही इसलिए मैं हंस रहा हूं। कहा क्या बात? इससे पहले थोड़ी ही दूर पहले ये जो गरबनडंगा का पुल है, इस पुल को क्रॉस करने से पहले या थोड़ी ही दूर गुजरने के बाद वहां एक घर मिला, वहां एक बस्ती मिली। वहां जब गए तो वहां उनकी मालिकन ने वहां उनकी बीबी ने खाना दिया, लेकिन जब उनका शौहर आया तो खाना छीन लिया। लेकिन जब आपके घर पहुंचा तो आपकी मालिकन ने खाना नहीं दिया और आपने खाना दिया। इस मिसाल को गौर से सुनिए, मतलब एक जगह पे मर्द ने खाना दिया, बीबी ने इनकार कर दिया, एक जगह पे बीबी ने दिया और शौहर ने इनकार कर। मन मन में हंस रहा, क्या मामला है। अब तक ये सुन के आ रहे थे, औरत बड़ा कठोर दिल होता है, यहां पर तो पासा ही उलट गया, एक जगह पे मर्द ने खाना दिया, एक जगह पे औरत ने दिया। तो वो आदमी कहता है फला, अब सुनिए इसका जवाब। जिस घर में औरत ने खाना दिया था वो मेरा रिश्तेदार में से कोई और नहीं बल्कि सगी बहन है। उस घर में मेरी सगी बहन है और इस घर में मैं हूं। यहां मतलब आखिरी घर में कौन खाना खिलाया था? मर्द ने। वो मेरी बहन है, मैं उसका भाई हूं। उस घर में मेरी बहन ने आपको खाना खिलाया,
اور اس گھر میں اس کا بھائی میں ہوں، میں نے آپ کو کھانا کھلایا، اور اس گھر میں میری بیوی نے آپ کو کھانا نہیں دیا، اور اس گھر میں میری بہنوئی نے آپ کو کھانا نہیں دیا۔ گویا کہ ہم دونوں ایک ماں باپ کے اولاد ہیں، اور یہ دونوں ماں باپ کے اولاد ہیں۔ گویا کہ ہمارا خاندان ایک ہے اور ان دونوں کا خاندان ایک ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ خاندان کے اعتبار سے بھی کچھ لوگ ہوتا ہے کہ خاندانی ان کو فخر ہوتا ہے، خاندانی ان کو جذبہ ہوتا ہے، خاندان میں جیسا باپ ہوتا ہے ان کا بیٹا ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، مہمان کی عزت کرنا جانیے۔ وہ صحابی جن کے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی ہے مہمان کو کھانا کھلانے پر، لیکن ہم اور آپ مہمان کو دور رکھتے ہیں، مہمان کو دور رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، اللہ کے رسول کی دو بیٹی سے ان کی شادی ہوئی، لیکن اللہ سے کتنا ڈرنے والے تھے، آخرت کی کتنی تیاری کرنے والے تھے۔ شرم و حیا ان کے اندر اتنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے، اللہ کے رسول گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں آنا چاہا، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دے دی، آپ گھر کے اندر داخل ہو گئے، آپ کی پنڈلی مبارک پہ کپڑا نہیں ہے۔ پھر عمر فاروق نے اجازت مانگی، پھر آپ نے اجازت دے دی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس گھر میں داخل ہو گئے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، لیکن اجازت دینے سے پہلے اپنی پنڈلی پر کپڑا رکھ دیا۔